ہماری آیت نمبر انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ پہلے اس کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 194 اور 195۔ اب تک ہماری 4 آیات ہو گئی ہیں، امید ہے کہ بہنیں یاد کر رہی ہوں گی، اور اپنے اپنے لیسن پلیز آپ دیجئے۔ آپ جب تک یاد نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ جتنا زیادہ انشاءاللہ آپ اس پہ محنت کریں گے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت محسوس ہوگی۔ چلیے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر دیکھیے 194۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتینا، اور دے ہمیں، ما، جو، وعدتنا، وعدہ کیا تو نے ہم سے، اعلیٰ، اپنے رسولوں کے، اعلیٰ رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا، اور نہ، تخزینا، تو رسوا کر ہمیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انکا، بے شک تو، لا تخلف المیعاد، نہیں تو خلاف کرے گا المیعاد، وعدے کے۔ فاستجابا، تو قبول کر لی کیا چیز، دعا کو، لہم، ان کے لیے، اور ربہم، ان کے رب نے، انی، کہ بے شک میں، لا، نہیں، اضیع، میں ضائع کروں گا، عمل عامل، کسی عمل کرنے والی کا، منکم، تم میں سے، من ذکر، خواہ مرد ہو، او یا انسا، عورت، بعدکم، بعض تمہاری، من بعد، بعض میں سے ہیں، فالذین، تو وہ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، واخرجوا، وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا، اور وہ اذیت دیے گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، وقوتلوا، اور وہ ماری گئے، لاکفرن، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، برائیاں ان کی، ولا ادخلنہم، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہے، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ثواب یعنی بدلہ ہے یا ریوارڈ ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، واللہ، اور اللہ تعالی، عندہ، اس کے پاس، حسن ثواب، اچھا بدلہ ہے یا ثواب ہے انشاءاللہ۔ چلیے ان آیات کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ آپ سب ریڈی ہیں؟ سب نے اپنے اپنے مصحف کھولے ہیں؟ شاباش، 1 ٹائپ کیجئے، کس کس نے مصحف کھولا ہے؟ چلیے الحمدللہ، ٹائپ کیجئے، شاباش۔ چلیے شبینہ، بارک اللہ فیک، آیت نمبر انشاءاللہ 193 اینڈ 194، ٹھیک ہے انشاءاللہ، سب ریڈی ہے نا؟ بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم بعدكم من بعد، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ-साथ किया होगा। बहुत ही खूबसूरत आयत है, थोड़ी-सी 195 थोड़ी-सी बिग आयत है, दैट्स ओके इंशाअल्लाह। आप इसको कर लेंगे अल्लाह ताला की रहमत से इंशाअल्लाह, क्योंकि अब जो आपकी क्लास होगी आप इसको नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी 2 वीक्स ऑफ है इंशाअल्लाह ना, तो अब आपकी जो इंशाअल्लाह हमारी क्लास होगी वो 10th पे इंशाअल्लाह होगी ना, क्योंकि आपको पता है कि विंटर आ रहा है और आप सब किसी न किसी इंशाअल्लाह मसरूफ़ियत में होंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से आपके अपने प्रोग्राम्स होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं नहीं चाहती कि आप इन छुट्टियों में जो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाइए इंशाअल्लाह। 2 वीक्स इंशाअल्लाह आपका ऑफ है, तो एज़ सच बड़ी आयत है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से आसान हो जाएगा, आपके पास टाइम है इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट 2 वीक ऑफ है इंशाअल्लाह, 10th जनवरी पे आपकी क्लास रिज़्यूम होगी, ठीक है? तो अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए आसान कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। चलिए इंशाअल्लाह थोड़ा-सा इन आयात को देख लेते हैं, तर्जुमा देख चुके थे, इसकी रेसिटेशन देख चुके थे, थोड़ा-सा इंशाअल्लाह इसकी तजवीद देख लेते हैं ताकि इंशाअल्लाह आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और रब्बना, रब्बना को देखिए रॉ को आपने हेवी रखना है, मेक श्योर करना है। बहुत से लोग कैसे पढ़ देते हैं रब्बाना, रब्बाना नहीं है रब्बाना, आपको बा को हिट करना है ट्वाइस। अगर आपने बा को हिट ट्वाइस नहीं किया तो आपने एक तरह से जुल्म कर दिया, और जुल्म क्या है, अंधेरों की शक्ल में कल होगा ना। तो वो बहनें जो तजवीद का इतना बेचारी किसी भी वजह से ख्याल नहीं कर पाती है, रब्बाना पढ़ देती, नहीं रब्बाना, बा को ट्वाइस आपने हिट करना है, रॉ को हैवी करना है ना। 2 काउंट, वाई 2 काउंट स्ट्रेच कर रहे हैं, ये अलिफ मदिया है, ठीक है, नेचुरल मद है। देखिए कुछ होती हैं जिसे कहा जाए मद्दुल फ़रई, ठीक है? ये ब्रांचेस ऑफ द, जैसे मद होती है ना, ब्रांचेस होती हैं, और कुछ होती हैं मद्दुल असली या नेचुरल मद, जिसको आप कहते हैं मद्दुल असली। तो उसमें से वन ऑफ द मद होती है अलिफ मद्दिया। अलिफ मद्दिया का मतलब क्या होता है? याद रखिए कि अलिफ से पहले कोई भी यानी फतहा आ जाए, यानी कोई भी लेटर हो सकता है उस पर फतहा आ जाए, तो आपने इसको ऑलवेज 2 काउंट स्ट्रेच करना होता है, ठीक है? तो आप किसे इसको कैसे कहेंगे? रब्बना, ना को पूरा आपने 2 काउंट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अलिफ है और अलिफ से पहले नून और उस पर फ़तहा आ रही है, ज़बर आ रही है, ठीक है? तो जब भी नून के ऊपर फ़तहा या ज़बर आएगी, ऑलवेज़ आपने उसके बाद अगर अलिफ अटैच है तो आपने 2 काउंट पढ़ना है, ठीक है? रब्बना, ना आपने इसको पूरा 2 काउंट लेके जाना है, और अगर आपने 2 से कम किया तो ये जो गलती है वो हराम दर्जे की गलती है। यानी लाहने, आप लाहन पढ़ेंगे अरबी के अंदर, तो ये जो मिस्टेक है वो बिग बिग मिस्टेक है जिसमें इंसान को गुनाह मिलता है, ठीक है? हम तो समझते हैं कि हम तो हर लेटर के बदले 10-10 नेकियां कमा रहे हैं। हम रॉ पढ़ रहे हैं तो हमें 10 नेकी मिल रही है, बा पढ़ रहे हैं तो 10 नेकी, अगेन बा पढ़ रहे हैं तो 10, नून पढ़ रहे हैं तो 10, अलिफ पढ़ रहे हैं तो 10। लेकिन याद रखिए जब आपने हक़ ही अदा नहीं किया, हक़्क़ तिलावती ही नहीं किया, तो फिर कैसे हम उस नेकियों के मुस्तहिक हो सकते हैं ना। यानी कोई भी काम अगर आप नेकी समझ के करें, एक्चुअली वो नेकी ना हो, मुराद ये कि वो तरीक़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नहीं है, या सुन्नत के तरीक़े के मुताबिक नहीं है, या जिसे कहा जाए आप कह लीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं है, तो कैसे वो कबूल हो सकता है? कैसे वो रिवॉर्ड में और आप ले सकते हैं ना? तो ना को आपने पूरा 2 काउंट करना है। व आतीना, आतीना। अब आप देखिए और ना, ये आपने दोनों को आपने 2-2 काउंट स्ट्रेच करना है। ये जो पहली वाली है वो मद्दुल बदल है, ठीक है? मद्दुल बदल है। लेटर ऑन इंशाअल्लाह आपको मैं बताऊँगी, बस इतना आपको ज़हन में रखना चाहिए। हमज़ा यानी जो सबब हमज़ा है ना, ये एक मद का सबब बनता है, ठीक है? और ये मद्दुल बदल कहलाती है, मद्दुल बदल कहलाती है, ठीक है? असल में ये ना जो एक्चुअली वर्ड अगर आप ग्रामर में देखेंगे ना, असल में ये था अतीना,
अतीना। लेकिन क्या हुआ ना कि जो फ़तह की दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो अलिफ के साथ होती है, वो हमज़ा के साथ दोस्ती नहीं करता। तो फ़तह की दोस्ती चूँकि अलिफ के साथ है, तो लिहाज़ा हमज़ा को जो सेकंड वाली जो हमज़ा था अतीना, जो सुकून के साथ था, उसको अलिफ से रिप्लेस कर दिया, तो आतीना बन गया, ठीक है? आतीना बन गया। तो ये मद्दुल बदल है, बदल कर दिया, अलग यानी मुराद है हमज़ा को अलिफ के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना? तो ये मद्दुल बदल, आप इसको कितना काउंट स्ट्रेच करेंगे? 2 काउंट, ठीक है? ती को बिल्कुल आपने कसरा को शार्प रखना है, ठीक है? इसको आपने स्ट्रेच नहीं करना, ती ना, ती ऐसे करके स्ट्रेच नहीं करना। तीना, ना को पूरा आपने 2 काउंट, जैसे मैंने रब्बना को बताया, मद्दुल असली है, अलिफ मद दिया, मोटा नहीं कीजिएगा, मौ नहीं। बिल्कुल लाइट रखिएगा, बहुत मैं ऐसे भी नहीं, ये भी तरीका सही नहीं है। बहुत से लोग मैं पढ़ देते, नहीं, बिल्कुल लाइट रखिएगा, 2 काउंट सेम, ना जैसे आपने 2 काउंट स्ट्रेच किया, इसी तरह को भी आप 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। ये आपका अलिफ मद्दिया है, ठीक है? अलिफ मद्दिया है, लाज़मी है। अगर आपने 2 काउंट से कम स्ट्रेच किया या 2 काउंट से ज़्यादा स्ट्रेच किया, दोनों गलत हो। बस आपको 2 काउंट इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है? मीम फतहा म और मीम फतहा अलिफ सुकून इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए वअदना, ठीक है। आप इसमें देखिए वअदना, ता पढ़ रहे हैं, दाल नहीं पढ़ रहे। इंशाल्लाह लेटर ऑन जब आप हमारी मंडे क्लास में आएंगे तो ये आप इदगाम के कुल कुछ रूल पढ़ेंगे, उसमें से एक होता है इदगाम मुतजानिसैन। जब 2 मखरज साथ-साथ आ जाएँ, देखिए दाल और ता दोनों का जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, जहाँ से वो लेटर प्रोनाउंस हो रहे हैं, जहाँ से वो अदा हो रहे हैं, वो दोनों सेम है, लेकिन दोनों की क्वालिटीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो डिफ़र करती हैं, ठीक है? वो डिफरेंट हैं। तो लिहाज़ा फिर हम क्या करते हैं, जो दाल की आवाज़ है, वो ता के अंदर मर्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम मखारिज हैं, दोनों सेम आर्टिकुलेशन पॉइंट हैं। बट डिफर कर रहे हैं इन देयर कैरेक्टरिस्टिक, वो अपनी जो क्वालिटीज हैं, जो अपनी सिफात हैं, उसके अंदर डिफर कर रहे हैं। तो लिहाजा जैसे आप कहते हैं ना, वो पढ़ते हैं ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम, नॉट अबदतुम पढ़ते हैं, दाल नहीं पढ़ते, मा अबदतुम, ता पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि क्योंकि दाल और ता दोनों सेम, जिसे कहा जाए उनका मखरज है कि आपकी टिप ऑफ द टंग जो आपकी है, और आपकी जो गम लाइन्स हैं, यानी जो आपकी आपकी जो गम है ना, आपके दाँतों के साथ जैसे ही अटैच होती है, वो जो रूट है, तो ये जो फ्रंट इनका जो इंसिजर है, बस यही इसका मखरज है, ठीक है? लेकिन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें डिफ़र है। तो ये इदगाम मुतजानिसैन कहलाता है। तो आप इसको ये नहीं पढ़ेंगे मा वअदतना, नहीं, वअदतना, ठीक है? इंशाअल्लाह इदगाम मुतजानिसैन, इसको अगर आप नोट कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो लेटर ऑन जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे चारों इदगाम की इंशाअल्लाह, 4 तरह के इस तरह के इदगाम होते हैं, इदगाम मुतजानिसैन, इसी तरह मुतमासिलैन, इसी तरह मुतक़ारिबैन और मुतबाइदैन दान, ठीक है इंशाअल्लाह। लेकिन एनी हाउ अगर आपको याद रहा तो याद रखिएगा, टू सिमिलर इनका मखरज है, बट द कैरेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट। तो ना को अगेन आपने 2 काउंट पढ़ना है, आइला, आइन निकालेगा, आइला, ला को 2 काउंट, इंशाल्लाह ला पे स्टैंडिंग फतह है, अलिफ सगीरा, आपने इसको 2 काउंट पढ़ना है। रूसूली का, हर एक को एक-एक काउंट पढ़ना है, फिर हरकत स्ट्रेच नहीं करनी है, रूसूली का, और हर एक को इत्माम हरकत करना है, टाइम देना, ये नहीं कि आपने एकदम किसी को टाइम या रूसूली का, अब आपने टाइम ही नहीं दिया, उसका हक ही नहीं दिया। एक काउंट का मतलब है यू हैव टू गिव द 1 काउंट, इज दैट यानी उस पर्टिकुलर लेटर को, राइट? रूसूली का, सीन के अंदर विस्लिंग साउंड वहां से हो, रॉ को है अपनी हैवी रखना है, रूसूली का, ली का, लाम की कसरा शार्प हो, वला, अगेन देखिए अलिफ की दोस्ती फतह के साथ है, तो आपने इसको 2 काउंट पढ़ना है, वला, ला पूरा 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। तो खुजीना, देखिए तो ख़ज़ीना आपने ख़ा को हेवी करना है, तो ज़ी को आपने इंशाल्लाह लाइट पढ़ना है, लेकिन दाल के मखरज से डिफ़र करना है, ठीक है? ज़ी, थोड़ी-सी व्हिस्लिंग साउंड होगी, ज़ी, ज़ी।
तुखज़ीना, ना को अगेन आपने टू काउंट, अलिफ की दोस्ती फतह के साथ है, पूरी टू काउंट, अलिफ मत दिया, यौमल, अच्छा यौमा नहीं पढ़ना, यौमा नहीं है ये, यौ, औ, बौ, तौ, सौ, यौ, ठीक है, यौमल क़ियामा, ठीक है। तो मेक श्योर मल पे जब आप इसको हिट करेंगे तो लाम को बाउंस नहीं कीजिएगा, ऐसे नहीं पड़ेगा, यौमल, मल, ऐसे नहीं, आपने टाइम देना, जरा सा टाइम देंगी तो बाउंसिंग इफेक्ट निकल जाएगा, यौमल क़ियामा, देखिए इतना भी नहीं टाइम दीजिएगा कि इसमें होल्ड हो जाए, ठीक है, तो इतना नहीं टाइम देना कि यौमल क़ियामा, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है, या को आपने स्ट्रेच करना है, मैंने यहाँ पे रोका था, आप चाहें तो इसको रोक लें, चाहें तो कंटिन्यू कर लें, कंटिन्यू करेंगे तो यौमल क़ियामती पढ़ेंगे, लेकिन अगर रोकेंगे तो ये ताए मरबूता, ये जो क्लोज ताए है, तो ये इंशाल्लाह बेसिकली जिसको ताए मरबूता कहते हैं, इसको आप हा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, यौमल क़ियामा, ठीक है। इन्ना का अगेन आप देखिए, इन्ना का पे आपने मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है, मरातिबुल गुन्ना, रैंकिंग ऑफ गुन्ना के एतबार से ये मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है ना। आपने क्या करना है, इसमें होल्ड करना है फॉर टू काउंट, अंदाजे से कह रही हूँ, ठीक है, इन्ना का, ठीक है, ला, अगेन आपने इसको टू काउंट पढ़ना है, अलिफ मत दिया, तो खलीफुल मीआद, ठीक है, तो ख्वा को हैवी रखिएगा, ली लाम की कसरा शार्प रखिएगा, फुल लाम पे अगेन बाउंस नहीं कीजिएगा, मी को आपने टू काउंट पढ़ना है, या मत दिया है, या से पहले याद रखिए, या की दोस्ती हमेशा कसरा के साथ है ना, तो जब भी आप देखेंगे कि कसरा के बाद या साकिन ना आए, तो आपने इसको ऑलवेज टू काउंट स्ट्रेच करना है, मीम कसरा मी, मीम कसरा, या सुकून मी, ठीक है, डिफरेंस आपको बता रही हूँ कि टू काउंट में आप कैसे फर्क करेंगे। अब आप इसको रोकेंगे तो खलीफुल मीआद, तो जब आप रोकेंगे तो आप 2 4 6 काउंट करके रोक सकते हैं, तो आप इसको 4 करके रोक दीजिए इंशाल्लाह, ताकि आपकी रेसिटेशन एक इक्वल उसमें रहे कि आप इसको भूल ना जाए ना, तो इसको आप 2 4 6 काउंट इंशाल्लाह रोक सकते हैं, दाल पे विद कलकला के साथ। फस्तजाब लहुम, फस्तजाबा में देखिएगा कि नेक्स्ट आयत को सामने आ जाएगी, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा फस्तजाबा, इसका मतलब जी फस्तजाबा यानी ता को सीन पे आपने जिसे कहा जा, आपने विस्लिंग साउंड करना है, जा 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 नहीं करना, कि एयर आपकी निकलनी नहीं चाहिए, फस्तजा जाबा, जा जा क्या हो रहा है, ये जा में एयर आ रही है बाहर ना, और ये जो जीम है ये इसके अंदर एयर पास नहीं होनी चाहिए, इसको इसमें आवाज रुक जाती है, ठीक है, तो अजुदु क़त्तन बकत, इसमें आवाज रुक जाएगी आपकी, तो फस्तजाबा, जाबा, नॉट झा झा, ये जो एयर आ रही है ना ये दुरुस्त नहीं है, तो आपने इसके लिए क्या करना है, जीम शीन या का जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है मिडिल ऑफ द टंग, आपकी ऊपर की अपर पैलेट से लगती है, लेकिन अगर आप जीम के लिए, आपको पता है अपर पैलेट तो बहुत बड़ा है मिडिल पार्ट ऑफ द टंग का, तो आप वो हिस्सा इस्तेमाल कर लीजिए जो आपकी माउथ के पास है, आपके मुंह के करीब है, तो अजा एयर नहीं आएगी, अजा जा ये एयर आ रही है, तो आपको इसको थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है, फस्तजाबा लहुम, मीम पे पूरा आपने गुन्ना कंप्लीट करना है, नाक़िस गुन्ना, और रब्बुहुम अगेन ये पहले बता चुकी हूँ, रा को हैवी, बा को ट्वाइस हिट कीजिएगा, मीम पे नाक़िस गुन्ना, अन्नी अगेन मैंने आपको अन्ना पे बताया मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना, नी को आपने टू काउंट पढ़ना है इंशाल्लाह, या मत दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया था, या की दोस्ती किसके साथ है, कसरा के साथ, तो आपने टू काउंट होल्ड भी करना है एंड स्ट्रेच आल्सो टू काउंट, अन्नी, ठीक है, उसके बाद देखिए ला के पास देखिए नेक्स्ट लेटर में ला के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको मद का साइन नजर आएगा, इट्स मीन यू हैव टू स्ट्रेच 4 to 5 काउंट, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट लेटर हमजा है, तो याद रखिए जो मद का साइन आपको नजर आता है उसका कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई वजह होती है, तो वन ऑफ द रीजन हमजा होता है, अगर हमजा उसी पार्ट का हिस्सा है इट्स मीन ये मद तो है लेकिन ये अटैच मद है, इसको हम मद्दुल वाजिब मुत्तसिल कहते हैं, लेकिन अगर हमजा यही हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ जाए, नॉट वो जो पहला वाला वर्ड है उसमें आए, तो ऐसे मौके पर ये मद्दुल जायज मुनफसिल हो जाती है, ठीक है, डिटैच हो जाती है, हमजा उसका पार्ट नहीं होता, नेक्स्ट वर्ड का पार्ट होता है, तो ला को आपने स्ट्रेच करना 4 to 5 काउंट, ला उदीउ,
ठीक है? अगेन देखिए दौत को आपने हैवी पढ़ना है, दी को आपने हैवी करते हुए 2 काउंट स्ट्रेच करना है, या मदिया, ठीक है? आइन को वाज़े करेंगे क्योंकि बार-बार आइन आ रहा है। उदीउ अमल आमिलिम मिनकुम, ठीक है? अमल आइन निकालिएगा, सबको एक-एक काउंट दीजिएगा। आमिलिन आ को आपने 2 काउंट पढ़ना है। तनवीन के बाद मीम आ रहा है, तो इदगाम क्या हो जाएगा? ये आपको पता है कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा जो साउंड ऑफ तनवीन इनटू मीम साकिन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? इदगाम कामिल, ठीक है? कंप्लीट इदगाम, लेकिन विद गुन्ना, और गुन्ना की जो 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 रैंकिंग ऑफ गुन्ना है, उस हिसाब से ये कौन-सा गुन्ना है? अकमल गुन्ना, यानी मोस्ट कंप्लीट गुन्ना। आपने ना सिर्फ मर्ज करना है तनवीन की आवाज़ को, साथ ही आपने होल्ड भी करना है फॉर 2 काउंट। यहाँ से देखिए अमल आमिलिन मिनकुम, तो आमिलिम, ये जो मैं होल्ड कर रही हूँ, लिन नहीं पढ़ रही, लिम पढ़ रही हूँ, ठीक है? मिनकुम इख्फा है, लाइट इख्फा रखिएगा क्योंकि काफ इज द लाइट लेटर। खुम, काफ की दम्मा को पहले वाजे कीजिएगा, कुम नहीं है, ये कुम नहीं है, कुम नहीं होता। काफ की दम्मा वाजे कीजिए, देन मीम साकिन के गुन्ने को वाजे कीजिए, मिनकुम, मिन, ठीक है? इंशाल्लाह। तो मीम साकिन के बाद बी में अगेन इदगाम हो गया, ठीक है? इदगाम शफवी, आप अपने होंठों से अदा करते हैं ना इसको, जिसे कहा जाए मीम का जो मखरज है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है वो, जिसे कहा जाए होंठों से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इदगाम मीम शफवी, इदगाम मीम शफवी, यानी मीम की आवाज मीम के अंदर मर्ज हो गई, ठीक है? और इसको होल्ड फॉर 2 काउंट। अगेन ये अकमल गुन्ना है आपका। मिन तकरिन, अगेन देखिए मिन तकरिन, उन साकिन के पास जाल आ रहा है। अल्लाहु अकबर, बहुत लंबी आयत है, पता नहीं मैं तफसीर आपको करवाऊँगी इंशाअल्लाह। मिन ज़करिन, नून साकिन के बाद देखिए ज़ाइल है, तो आपने इख्फ़ा करना है, लाइट इख्फ़ा करना है, मिन ज़करिन नहीं करना है, मिन ज़करिन, नून सा देखिए ज़करिन। अब यहाँ पे तन्वीन की आवाज़ को वाज़ेह कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेटर हमज़ा आ रहा है। हमज़ा, हा, आइन, हा, गइन, खा, ये आपके हुरूफ़ हलक़ी हैं, जो आपके थ्रोट से अदा होते हैं। जब भी तन्वीन या नून साकिन के बाद ये लेटर्स आते हैं, तो तन्वीन या नून साकिन की आवाज़ को वाज़ेह करना पड़ता है, प्रोमिनेंट करना पड़ता है, ठीक है? ज़करिन औ उन्सा, ठीक है इंशाअल्लाह? तो आपने वाज़ेह करना है, औ, बौ, तौ, ये लीन है, आपने इसको ऑलमोस्ट कह लीजिए 1.52 के करीब इसको स्ट्रेच करना पड़ता है, ठीक है? ये औ नहीं पढ़ना, औ, ठीक है? औ, बौ, उन्सा, उन्सा, लाइट इख्फ़ा कीजिएगा फॉर इसको, जैसे होल्ड करिएगा ऑलमोस्ट, डिपेंडिंग ऑन योर रेसिटेशन। अगर आप थोड़ा तेज़ी से पढ़ रहे हैं तो आपका थोड़ा टाइम का ड्यूरेशन इख्फ़ा का कम हो जाएगा। अगर आप बहुत स्लो पढ़ रहे हैं तो फिर टाइम का ड्यूरेशन डिफरेंट हो जाएगा। सा 2 काउंट पढ़िएगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तब भी, रोकते हैं तब भी। बअदुकुम मिन बअद, बा पे आप देखिए आइन को वाज़ेह करना है। पहले बा की फ़तह वाज़ेह कीजिए, बा, फिर आइन को मर्ज कीजिए, बा। अच्छा, बहुत ज़्यादा झटका नहीं दीजिएगा, बअदुकुम, ये हमज़ा बन जाएगा अगर आपने इसको झटका दिया, या आपने बहुत एक्ज़ैजरेशन की, बअदुकुम, ये आइन मोटा हो रहा है और उसकी जो क्वालिटी है वो निकल रही है, ये तवस्सुत लेटर है। तो इसके अंदर ये कोई वो नहीं है कि आप इसके अंदर हवा पूरा अंदर ही भर लें, नहीं, एयर आपको बाहर निकालनी है, ठीक है? तो आपने इसको जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं, बअदुकुम, ठीक है? बअदुकुम, दौत को हैवी कीजिएगा, खुम, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, इदगाम मीम शफवी, ठीक है? अगेन सेम जो आपने मिन खुम में देखा था वही है, मीम बाद। अब आप देखिए नून साकिन के बाद बा आ रहा है, जब भी नून साकिन के बाद बा आता है ना, तो नून की जो आवाज है, तनवीन की आवाज, जिसे कहा जाए मीम के अंदर मर्ज हो जाती है, ये इक़लाब कहलाता है, इक़लाब। इक़लाब के लिए कंडीशन ही सिर्फ एक होती है कि नून साकिन या तनवीन के बाद लेटर बा आ जाए। तब लेटर बा आ जाता है तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ मीम में मर्ज हो जाती है, नॉट मीन बैड, आप पढ़ती हैं मीम बैड, ठीक है? स्मॉल सा मीम आपको अपने मुसहफ के अंदर नज़र आता है, बैद। अगर आप इसको रोकेंगे या कंटिन्यू करेंगे, दोनों कर सकते हैं। मैंने कंटिन्यू किया था, बैदिन, तो इख्फा करेंगे, रोकेंगे तो बैद करके हैवी करके दौत को रोकेंगे। फल्लज़ीना, ज़ी आपका 2 काउंट है, या मत दिया, हाजरूहा, ये हा नहीं है, हा, ये हा नहीं है, याद रखिए ये क्या है? हा, हा, ठीक है? हा को 2 काउंट, अलिफ मदिया, रू को अगेन आपने 2 काउंट पढ़ना है। ये आपकी क्या है? वाव मदिया। व उखरिजू, जू, उख,
ہا پہ آواز چلتی رہے گی، ری جو جو آپ کو الحمدللہ سوری خا پہ ہم جو ہے ہمس ہے جی انشاءاللہ، ری را کی کسرہ شارپ رکھیے گا، جو میں آپ کی ایئر باہر نہیں آنی چاہیے، جو یہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے، جو آپ نے اپنے لیے خاص کر مڈل پارٹ آف دا ٹنگ کا وہ حصہ استعمال کرنا ہے اپر پیلٹ کا، جو کہ آپ کے منہ کے پاس ہے تاکہ ایئر باہر نہ آئے، ٹھیک ہے، اوخری جو ٹو کاؤنٹ واو مدیہ میاں آپ اخفا کریے گا، لائٹ اخفا دیا ریم، دال کی کسرہ شارپ، یا الف مدیہ، یا کو ٹو جسے کہا جائے کاؤنٹ اسٹریچ کریے گا، مد الاصلی ہے، مد الطبعی دیاری ہم پہ آپ نے ناقص غنہ کرنا ہے، را کی کسرہ لائٹ رکھیے گا، یعنی مراد ہے کہ را کو آپ نے لائٹ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ دیا را کو اگر آپ ہیوی بھی کرنا چاہیں تو ہوگا بھی نہیں، وَأُوذُو اب یہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے، دونوں واو مدیہ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے واو کی فرینڈشپ دمہ کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، یاد رکھیے واو ساکن یعنی واو جب سکون اور اس سے پہلے پیش آ جائے یا ضمہ آ جائے تو ہمیشہ ٹو کاؤنٹ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اوزو 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 دونوں کو ٹو کاؤنٹ آپ نے پڑھنا ہے، فی سبیلی فی آپ کو ٹو کاؤنٹ یا مدیہ ہے کیونکہ یا کی فرینڈشپ کس کے ساتھ ہے، کسرہ کے ساتھ، تو ٹو سبی سین پہ وسلنگ ساؤنڈ واضح ہو، سبیلی بی اور لی دونوں یا مدیہ ہے، یا کہ آپ کو پتہ ہے دونوں کے نیچے کسرہ ہے اور دونوں کے بعد یا ہے، تو یہ یا مدیہ ہے، آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے کہ غلطی نہیں ہو، وَقَاتَلُوا آپ کو ہیوی پلس ٹو کاؤنٹ، وَقَاتَلُوا لو آپ کو واو مدیہ، اگین واو کی فرینڈشپ ضمہ کے ساتھ ہے، ٹو کاؤنٹ، وَقُوتِلُوا قُوتِلُوا آپ نے ہر ایک کو اس کا حق دینا، وَقُوتِلُوا لو کو آپ نے ٹو کاؤنٹ انشاءاللہ پڑھنا، واو مدیہ، لَأُكَفِّرَنَّ لَأُكَفِّ پا پہ آپ نے اس کو ٹوائس ہٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسٹریچ نہیں کرنا، لا کو اسٹریچ، لا صرف ایک کاؤنٹ ہے، لَأُكَفِّرَنَّ را کو ہیوی رکھیے گا، نون پہ مشدد ہے، آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ اکمل غنہ ہے، عنہم نون پہ دیکھیں باؤنس نہیں کیجیے گا، بہت سارے بچے جیسے جب میں ان کی ریسیٹیشن سنتی ہوں عنہم نہیں ہے، یہ باؤنس کوالٹی نہیں ہے، عنہم ٹائم ذرا سا دیں گے نا تو نہ اس میں ہولڈ نہیں ہے، بس ناقص غنہ ہے لیکن واضح ہے، دونوں پہ میم ساکن نون ساکن دونوں پہ ناقص غنہ ہے، ٹھیک ہے، عنہم ٹائم دے کے کمپلیٹ کریں ساؤنڈ کو، عنہم سیئاتہم دیکھیں سیئ یا پہ شد یہ نبر کا رول آ گیا، اب آپ نے اس کو سیئاتہم پڑھ لیا تو اب سیئاتہم پڑھ لیں تو اب یا پہ شد تو نہیں پڑھے، سیئاتہم آپ کو بتانا ہے سیئاتہم ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے، سیئاتہم کو آپ نے انشاءاللہ یعنی یا پہ بیسیکلی نبر کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ایلیویٹ کرنا، بلند کرنا، آواز اونچی ہو جائے گی باقی لیٹر کی آواز کے مقابلے میں، تو اب آپ خود دیکھیں گے جب میں پڑھوں گی سیئاتہم یہ جو میں اوپر سے یہ جو آواز کو ایلیویٹ کر رہی ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ تھوڑا پریشر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ شد ہے، ٹھیک ہے، یا واؤ پہ جب بھی شد آتا ہے نبر کا رول ہوتا ہے، آواز تھوڑی سی ایلیویٹ ہوتی ہے، ٹو کاؤنٹ تیہم الف مدیہ تھی جس کو مد البدل بھی آپ کہہ لیں انشاءاللہ، آگے انشاءاللہ بتاؤں گی، میم ساکن پہ آپ کا انشاءاللہ آپ کا یہ ناقص غنہ ہے، ولا ادخلنہم دال پہ آپ کا قلقلہ ہے انشاءاللہ، خلن نون پہ آپ کی شد ہے انشاءاللہ، تو آپ کو مکمل موسٹ کمپلیٹ غنہ کرنا، میم ساکن ہے ناقص غنہ، جنات سیم جب بھی نون مشدد آدھا نون میں شدہ آلویز آپ نے اس کو ہولڈ فار ٹو کاؤنٹ اینڈ نا اسٹینڈنگ فتح از دیر، تو آپ کو ٹو کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، تین تجری تنوین کے بعد تا آ رہا ہے، اخفا کا رول ہے، آپ نے ہیوی نہیں کرنا، جناتیوں نہیں ناک کے اندر آواز لے کے نہیں جائیں، بس آپ تاکہ مخرج کے کلوز اپنی زبان کو رکھیے، جناتی تجری جیم پہ قلقلہ ہے، ری کو آپ نے یا مت دیا، ٹو کون من تحتیہا الانہار، ٹھیک ہے، من لائٹ اقفا رکھیے گا، تحتیہا تحتی تحا پہ آپ کا ہمس واضح ہو، من تحتیہا الانہار، ٹھیک ہے، لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا، حل روکے گا، انہارو اب یہ ہاں نہیں ہے، یہ جو ہاں ہے نا ہاں ہے ناٹ ہا،
अनहारू, हा को आपने टू काउंट, रू पे आपने हैवी रॉ को सवाबन, सा है, सीन नहीं है, सवाबन नहीं है, सवाबम। अब देखिए तनवीन की आगे अगर आवाज अगेन जो है मीम के अंदर मर्ज हो रही है, इदगाम कंप्लीट यानी कंप्लीट इदगाम है विद अकमल गुन्ना। आपने इसके अंदर गुन्ना भी करना है फॉर टू काउंट मीन। नून साकिन के बाद आइन आ गया, हमजा हा, आइन हा, गौन खा, हुरूफ हलकी, तो आपने नून साकिन की आवाज को वाज़े करना है। मिन इंदिल्लाह, मैंने इसको रोका था, आप चाहें तो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मिन इंदिल्लाहि करके आप आगे जा सकते हैं। इन नून साकिन के बाद दाल है तो इख्फा है, तो इस पे भी इख्फा कीजिएगा और लाम जलाला को आपने लाइट लफ्ज़ वर्ड अल्लाह के नाम को लाम जलाला कहते हैं, तो इसको आपने लाइट रखना है, हेवी नहीं करना, ठीक है? वल्लाहु, वल्लाहु के अंदर देखिए लाम जलाला को हेवी रखिएगा। क्यों? क्योंकि लाम ज वर्ड अल्लाह के नाम से पहले फ़तह या दम्मा आती है, यानी ज़बर और पेश, तो आपने हेवी करना है और अगर कसरा है तो आपने वर्ड अल्लाह के नाम को लाइट रखना है। हू को वाज़े कीजिएगा, इंदहू, नून साकिन है तो नून साकिन के बाद दाल है, इख्फ़ा कीजिएगा लाइट, इंदहू, हू को आपने 2 काउंट पढ़ना है, मद्दुल सिलातुल सुगरा है, ठीक है? इंशाअल्लाह इसको आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है? इंदहू हुस्नुस सवाब, ठीक है? हुस सीन पे वाज़े कीजिएगा, हा को वाज़े करते हुए, नुस सवाब, अब ये सा है, तो वाज़े कीजिएगा, सा को हिट ट्वाइस कीजिएगा, हुस्नुस सवाब। जब आप रोकेंगे तो आप 2, 4, 6 करके रोकेंगे, 4 रोक दीजिए, मद्दुल आरत सुकून बा विद क़लक़ला। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। बहुत खूबसूरत आयात हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता कर दे, अल्लाहुम्मा आमीन। देखिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इन जिसे कहा जाए आयत को पढ़ा करते थे ना। और आज हम देखेंगे रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। अब देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है ना कि ए हमारे रब, जो वादा तूने हमसे अपने रसूलों की ज़बानी किया हमें वो अता फ़रमा, और क्या कर क़यामत के दिन हमें रुसवा ना करना। इस दुआ से बहुत सारी बातों का पता चलता है। सबसे पहले ये कि रसूलों ने आपके जो वादे हम तक पहुँचाए हैं, तो इंसान कहता है कि हमें उम्मीद है कि आप उनको पूरा फ़रमाएँगे। अल्लाहू अकबर! और ये भी पता चलता है कि उसके इंसान यानी जो मोमिन के ज़हन और दिल में ये उम्मीद बस जाती है कि हमारा रब हमें क़यामत के दिन हमें शर्मिंदा होने से बचा लेगा, हमें रुसवा होने से बचा लेगा। और इस तरह से एक मोमिन के दिल की सफाई का अंदाज़ा होता है, उसके दिल की नरमी का अंदाज़ा होता है। और ये भी पता चलता है कि उसके अंदर किस कदर अल्लाह सुब्हाना व तआला का खौफ है ना, कि उसको अल्लाह की नाफरमानी से हया आती है। इसीलिए वो कहता है कि अल्लाह ताला के वादों का उसको यकीन होता है। क्यों? क्योंकि जब वो कायनात में देखता है कि पूरा निज़ाम किस अंदाज़ से चल रहा है, हर चीज़ अपने मकसद के मुताबिक अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक काम कर रही है ना। अब देखिए चाँद को जब अल्लाह ताला ने रात में आने का हुक्म दिया तो वो रात को ही आ रहा है। सूरज दिन में ही निकलता है। दिन अपने वक़्त पे निकलता है, रात अपने वक़्त पे होती है, प्लैनेट्स अपने वक़्त पे काम करते हैं, तो हर चीज़ एक निज़ाम के तहत, एक सिस्टम के तहत अपने मकसद के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो मोमिन को यकीन होता है कि अल्लाह के वादों का, उन वादों का जो उसने कायनात पे गौर व फ़िक्र के ज़रिए पाया कि कैसे कायनात की हर चीज़ अपने महवर के गिर्द घूम रही है, अपने मकसद के गिर्द घूम रही है, जो उसको कहा जा रहा है वही कर रहा है। तो सेम उसको यकीन होता है जब वो अल्लाह की किताब को पढ़ता है, तो उसको यकीन होता है कि इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद, अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करेगा। उसने जो अपने रसूलों के ज़रिए से बता दिया कि जो ईमान लाकर नेक अमल करेंगे, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला देगा। उन्हें दुनिया की भी क़यादत दी जाएगी और आखिरत में भी बेहतरीन जज़ा मिलेगी। और इसके बारे में सूरह अन-नूर में भी आता है 55, वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ताला उनके साथ जो अल्लाह ताला ने उनके साथ वादा किया है, जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल किए, वो उनको ज़मीन में ज़रूर ब-ज़रूर जानशीन बनाएगा, जैसे कि उसने उनसे पहले लोगों को जानशीन बनाया। तो दुनिया की क़यादत भी आपको मिलेगी जब आप ईमान लाकर नेक अमल करेंगे। अल्लाह ताला किसी का अजर ज़ाया नहीं करता। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अत-तौबा
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کون سے باغات؟ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ اور رضوان من اللہ، یہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ کیا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح یہ سورہ التوبہ آیت 72، اسی طرح اس آیت کی تفسیر میں سورہ محمد میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ اکبر، ویثبت اقدامکم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اور اللہ کی مدد کرنے سے نعوذ باللہ کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ آپ جو بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، دین سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے ہیں، کسی کے لیے بھی اللہ کی خاطر یہ سب کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ضرور مدد کرے گا اور آپ کے قدم کو جما دے گا۔ اور قیامت کے دن ایک مومن کی پھر دعا ہوتی ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، تو اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا۔ سورہ التحریم آیت نمبر 1۔ تو جو ایمان ہے اس کا وزن ہے، ایمان کی ایک پاور ہے، اس کی ایک قوت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایمان والوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ محشر کے دن تمام اہل جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے مومن دعا کرتا ہے، اللہ اس دن مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے، مجھے جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو یقیناً وہ ذلیل ہو گیا، تو اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ایمان والوں کا یقین ہے اور اسی پر بھروسہ ہے کہ جس طرح دنیا میں ساری مشکلات آتی ہیں اور انسان اللہ کے وعدوں کے مطابق ان تکلیفات کو، ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے۔ کیوں برداشت کرتا ہے؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے، کائنات کے نظام کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ واقعی جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ جب یہ یقین ہوتا ہے نا تو آپ کے لیے ساری مشکلات کو، ساری پریشانیوں کو، ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا، اگر کسی چیز کا کوئی ریوارڈ ہی نہیں ہوتا تو پھر انسان کیوں ان سب چیزوں کو برداشت کرے؟ اصل بات ہے کہ جب یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، تو انسان کے لیے ہر تکلیف بہت چھوٹی لگتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب آپ سچے دل سے مانگتے ہیں نا، اور ڈرتے ہوئے، خوف کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کے وعدوں کو یقین رکھتے ہوئے، تو پھر دعا کی قبولیت میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما دی۔ کیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بے شک میں تم میں سے کسی کے عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ دونوں کی الگ الگ بات کر دی، دونوں میں سے کسی کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کر رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، بعدکم من بعد، تم میں سے تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، تو یقیناً کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم تو ہر کوئی ہم میں سے اپنی برائیوں سے پریشان ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی برائیوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو پھر جب یہ سارے کام کریں گے تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ کی ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ تو اصل بات یہاں بتا دی گئی۔ ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہجرت کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا تو نام نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیت نازل کر دی کہ مرد ہو یا عورت، اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرے
करेगा। अल्लाह ताला ने कैसे उनकी दुआ कबूल की ना, उनके ईमान की सच्चाई की वजह से, उनका अल्लाह का ज़िक्र करने की वजह से, कायनात पर गौर व फ़िक्र करने की वजह से, रब की तौहीद रासिख़ होने की वजह से, रसूल की तस्दीक करने की वजह से, अपनी गलतियों पर अपने गुनाहों का शऊर आने की वजह से, जो भी उन्होंने शुक्र में कमी की, दरअसल अल्लाह ताला ने फिर उनकी दुआ कबूल की। जब उन्होंने अल्लाह से मग़फ़िरत चाही ना, तो अल्लाह ताला ने कहा मैं किसी का अमल ज़ाया नहीं करूँगा। उन्हें खुशख़बरी दे दी कि नेक अमल करने वालों के अजर को अल्लाह ज़ाया नहीं करता, ख़्वा वो मर्द हो या औरत। तो आख़िरत की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि मैं और आप गौर व फ़िक्र करें, अल्लाह से दुआएँ करें, गुनाहों की माफ़ी के साथ सिर्फ़ ये नहीं होता, अमल भी ज़रूरी है। ठीक है, गुनाह हो गए, हम सब इंसान हैं, बशर हैं, कमज़ोरी है, लेकिन याद रखिए सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी के बाद फिर गुनाह की फिर माफ़ी नहीं, ये दुरुस्त अमल नहीं है। अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो इंसान माफ़ी में देर ना करे, लेकिन फिर अपने ख़ालिस अमल को, मुराद है जो अमल है वो ज़रूरी है। अमल के बगैर नहीं आप आगे मूव ऑन हो सकते। अमल यानी ईमान लाकर अमल सालिह शर्त है कामयाबी के लिए। तो ये अमल सबकी जानिब से अल्लाह ताला की तरफ से कबूल किया जाएगा, ख़्वा वो मर्द हो या औरत। अल्लाह ताला किसी का अमल ज़ाया नहीं करेगा। अजर के एतबार से याद रखिए दोनों बराबर हैं, मर्द या औरत। अल्लाह ताला ने आप देखिए कि जैसे मर्द और औरत है ना, उनके दरमियान कुछ मामलात में फ़ितरी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से डिफ़रेंशिएट है। जैसे मर्द को अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ अल्लाह ने ऐसी दी कि वो कव्वामियत के दर्जे पर अल्लाह ताला ने उसको लाया है। लेकिन याद रखिए अजर के एतबार से, याद रखिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मर्द और औरत दोनों का जिसे कहा जाए, मतलब दोनों को जज़ा मिलेगी। अगर वो अच्छा करेंगे तो अच्छा, तो बुरा करेंगे तो बुरा। तो अमाल की जज़ा में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, ठीक है ना? तो अब जब इंसान यहाँ पे ये भी बता दिया तुम सब एक-दूसरे से हो, यानी मर्द या औरत पैदाइश के एतबार से, अमाल की जज़ा के एतबार से इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? तो लिहाज़ा मैं जब इंसान उसके बाद हिजरत करता है, अल्लाह की खातिर सारी अज़ियतें बर्दाश्त करता है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद करता है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान देता है ना, ये चारों काम इसके ने बता दिए। तो ऐसे मौके पर अल्लाह ताला उसको खुशखबरी देते हैं ना, कि जिन लोगों ने हिजरत की, अपने घरों से निकाले गए, अल्लाह की राह में तकलीफ़ दिए गए, उन्होंने जंग की, कत्ल कर दिए गए, तो अल्लाह ताला उनकी बुराइयाँ दूर कर देगा। आपको याद है, फ़ी सबीली से मुराद कौन-सा रास्ता है? अल्लाह का रास्ता, ठीक है? अल्लाह की अताअत, यानी अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की अताअत में, और अपने घरों से निकाले गए। आपको याद है कब्बाब बिन अरत के बारे में, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की। अल्लाह ताला हमें उसका अजर देगा। हम में से बाज़ तो अपनी मेहनत का फल खाए बगैर दुनिया से चले गए। यानी मुराद क्या है, जो फ़तूहात थी, जंगे बदर, जिसे कहा जाए तबूक, और भी जितनी भी फ़तूहात हुई, तो उसमें बहुत सारा गनाइम, बहुत ज़्यादा माल गनीमत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन कुछ लोग तो उससे पहले ही चले गए दुनिया में से। उनमें से एक मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो ग़ज़वा ओहद में 3 हिजरी में शहीद हुए। उनको कफ़न पहनाने के लिए हमें कोई कपड़ा ना मिला, सिवाय एक धारीदार चादर के। इस चादर से जब हम उनका सर ढाँपते, तो उनके पाँव नंगे हो जाते, और जब उनके पाँव पर डालते, तो उनका सर खुला रहता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनके सर को ढाँपने का हुक्म दिया, और पाँव पर खुशबूदार घास डालने का हुक्म दिया, और हम में से बाज़ लोगों के फल दुनिया में पक गए और वो उसे काटने लगे। सुभान अल्लाह! किसी को दुनिया में भी अजर मिल गया, आखिरत में कुछ लोग फल खाए बगैर दुनिया से चले गए। तो अल्लाह की मर्ज़ी है। कुछ बाज़ औक़ात आप नेकी का काम करते हैं, आपको नहीं समझ आता कि कहीं आपको रिवॉर्ड है, लेकिन आप अल्लाह की खातिर करेंगे, अल्लाह आपका अजर ज़ाया नहीं करेगा। कितना तकलीफ़ दिएगा ये सहाबी अल्लाह के रास्ते में, मुसअब बिन उमैर, मक्का के बेहतरीन कबीले में से थे, लीड्स कबीला, बहुत अमीर तरीन इंसान, लेकिन जब मौत आ रही है, तो एक चादर तक नहीं है, जिसे कहा जाए एक इतनी इतनी बड़ी चादर भी नहीं है कि सर ढाँपे तो पाँव खुल जाए। तो आप देखिए अल्लाह की खातिर किया था ना, तो अब बात ये है कि अल्लाह किसी का अजर ज़ाया नहीं करेगा। जो लोग दीन की खातिर अपनी जान, माल, अपना वक़्त, अपने टैलेंट लगाते हैं, अल्लाह उनका अजर कभी नहीं ज़ाया करेगा। मैं और आप यहाँ रुक के सोचें, क्या मैं और आप ये काम करते हैं? हम तो आधे घंटे की क्लास लेते वक़्त भी 10 मिनट ऊपर हो जाए, हमारी चीख निकल जाती है, आप बहुत लंबा पढ़ा देती हैं, आपकी क्लासेस ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, हम सब इंसान हैं, हम सब गलती करते हैं। तो याद रखिए हम सब इंसान हैं, हम सब से गलती होती, 5-10 मिनट इंसान से ऊपर जाता है, लेकिन जान के तो कोई भी नहीं करता। अल्लाह की बातें जब शुरू होती हैं, तो वो तो ऐसी ही है, ला
नहीं, आप बोलती ही जाएँ और आपको लगेगा कि अल्लाह की बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो असल बात है कि मैं और आप देखें, मैं और आप कितना वक़्त देते हैं अल्लाह के रास्ते में, अपने टैलेंट, अपना वक़्त, अपनी सलाहियत, अपनी जान, अपना माल देके। तो असल बात है कि अल्लाहू अकबर, एक दफ़ा हदीस का मफ़हूम आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अल्लाह की राह में इतना डराया और सताया गया हूँ, मेरी तरह ना किसी को डराया गया, ना सताया गया। मुझ पर मुसलसल 3 दिन ऐसे भी गुज़रे हैं कि इस अरसे में मेरे और बिलाल के लिए ऐसी खुराक भी ना थी जिसे कोई जानदार, कोई लिविंग थिंग खा सके, सिवाय इस थोड़ी-सी चीज़ के जो बिलाल ने अपने बगल में छुपा रखी थी। अल्लाहू अकबर! क्या इनका जो वाक़या है शिब अबी तालिब का, अब आप पढ़ेंगे आपकी आँखों से आँसू जारी रहे बगैर रहेंगे नहीं। आज हम तो इतने अच्छे से कम्फ़र्ट से ज़ोन में रहकर भी हमारे लिए दीन को हासिल करना कितना मुश्किल होता है, दीन को समझना। हम तो कहते हैं हम तो पहले से कुरान पढ़े हुए हैं, हमें क्या ज़रूरत है इस तरह पढ़ने की। हमारे पापा ने तो हमें कई दफ़ा ख़त्म करवा दिया, हम तो कितनी दफ़ा बिठाई भी बैठ चुके हैं। लेकिन असल बात है कि याद रखिए, अमल से ज़िंदगी उसी वक़्त बनती है जब आपको ये किताब समझ आएगी, आपके दिल की बहार बनेगी। खब्बाब बिन अरत कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए, उन्होंने फरमाया, जनाब मेरे करीब बैठो, उस जगह पर बैठने के लिए तुमसे ज़्यादा हकदार कोई नहीं है सिवाय अम्मार बिन यासिर यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के। सैयदना खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पीठ के वो निशान दिखाए जो मुशरिकीन मक्का के तशद्दुद और तहज़ीब का नतीजा थे। अब देखिए क्या कुछ उनको सताया कि उनकी जो मालिका थी, उनकी शर्मगाह पे प्राइवेट पार्ट पर गरम-गरम जिसे कहा जाए कोयले होते हैं ना, वो दहकती हुई रखती थी। आप सोचिए वो हिस्सा कितना सेंसिटिव होता है। हम क्या इतना सताए गए हैं? हम तो थोड़ा-सा काम भी करते हैं तो हमारी चीखें बाज़ औक़ात निकल जाती हैं और हमारे सारे काम डिसबैलेंस होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने चुना अपने नबी के लिए साथी के तौर पर। एक ग़ज़वे में अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उँगली खून आलूद हो गई तो आपने फ़रमाया, "तू है क्या? सिर्फ़ उँगली ही तो है जो खून आलूद हो गए और ये ज़ख्म तुझे अल्लाह की राह में हुआ है।" अल्लाहू अकबर! अल्लाह के रास्ते में कोई ज़ख्म आए और इंसान इतनी पॉज़िटिव बात रखे, हमारे पास अगर दीन का काम करते हुए एक के बाद एक मुश्किलात आती है तो हम कहते हैं, "व्हाई मी? मैं तो इतना नेकी का काम कर रही हूँ, मुझ पे ही क्यों मुश्किलात आ रही हैं?" याद रखिए, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको तकलीफ़ में डालता है। जब कभी आपको दीन का काम करते हुए एक के बाद एक मुश्किलात आए, आप समझ लीजिए कि अल्लाह आपके साथ खैर का काम, भलाई का काम कर रहा है। आपके साथ ये भलाई है। अगर आपको यकीन होगा अल्लाह के वादों का तो भलाई आपके कदम चूमेगी। कैस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने सैयदना सईद बिन ज़ायद रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों से कहते सुना, ये अमर वाक़ई है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे और अपनी बहन फ़ातिमा को इस्लाम लाने की वजह से रस्सियों से बाँध रखा था, जबकि वो मुशर्रबा इस्लाम ना जब तक कि वो इस्लाम ना लाए। तो आप देखिए क्या कुछ अल्लाह के रास्ते में इन लोगों ने तकालीफ बर्दाश्त की, वक़ातिलू वक़ूतिलू, और उन्होंने जंग की और कत्ल कर दिए गए। मास बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान आदमी ने अल्लाह की राह में इतनी देर तक कत्ल किया, जितनी देर ऊँटनी का दूध दोने में लगता है, उस पर जन्नत की खुशखबरी है। अल्लाहु अकबर! लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो क्या होगा? अल्लाह उनसे उनकी बुराइयाँ दूर कर देगा और इन साथ-साथ क्या, जो अल्लाह की मतलब जो भी अल्लाह के रास्ते में जान देते हैं, माल देते हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह ताला उनसे उनकी बुराइयाँ दूर कर देगा और उन्हें ऐसी बाग़ात में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। और ये क्या है? कितना बेहतरीन बदला है, सवाबन मिन इंदिल्लाह। अल्लाह के यहाँ ये उनका बदला है, अल्लाह ताला के पास बेहतरीन बदला है। बुराइयाँ दूर करना, जन्नत में दाख़िल करना, अल्लाहू अकबर! ये कोई छोटा बदला है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह नेकी के मामले में मोमिन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, उसको उसकी नेकी का बदला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी। और काफ़िर जो नेकियां अल्लाह ताला के लिए करता है, उसका बदला उसे दुनिया में पूरा-पूरा दे दिया जाता है। फिर जब वो आखिरत में पहुँचेगा तो उसको उसकी कोई नेकी बाकी नहीं रहेगा जिसका बदला उसे दिया जाए। अल्लाहू अकबर! तो मैं और आप देखें कितना खूबसूरत बदला है। क्या मैं और आप ये बदला लेना चाहते हैं? तो बस इन 3 अल्लाह अल्लाह ताला के कलाम से जुड़ जाइए, अमल कीजिए इंशाअल्लाह, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह मूव ऑन हो जाएँगे अपनी इंशाअल्लाह ग्रामर के सेशन की तरफ। थोड़ा-सा 5 मिनट ऊपर जाएगा लेकिन इंशाअल्लाह ट्राई करूँगी कि जिस हद तक इंशाअल्लाह आपको ग्रामर थोड़ी-सी करवा दूँ। आई नो कि 10 ओ